हाँ जी बच्चों, आशा है आपको मेरे वीडियोस अपनी क्लास 10th एसएसटी पढ़ने में थोड़ा सा मदद कर रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि आपको क्लास 10th एसएसटी के टॉपिक्स छोटे से छोटा और ईजीएस्ट फॉर्म पर आपके सामने रखा जाए, ताकि आप एग्जामिनेशंस रिव्यू जब करने बैठें तो जितना कंफर्टेबल रहें। आज इसी कड़ी में हम इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर शुरू करें। बेसिकली डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोग्रेस एज पर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स ओपिनियन, the meaning of development will be differ. Whatever you think for growth or development might be my opinion will be changed. In terms of rich class people, they think they have better opportunities, better facilities is the symbol of development. On the other hand, the poor people, they think 2 times meal a day if they have, that is development for them. इसलिए यहाँ पर हम जो कहें कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन दें डेवलपमेंट की, वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, इकोनॉमिकली we have the different criteria to measure development. The first one, it is called income method. As per this income method, we have two different type of countries. One is rich country and other is poor country. This is the income method. We will discuss later on about income method. And other than income, infant mortality rate, net attendance ratio, literacy rate, body mass index, and human development index. On the basis of these different ideas, different criteria, we can justify the development. The first, what is income method? As per income method, there are two types of countries: developed countries, rich countries, or poor countries. So, what are developed countries? The countries whose per capita income is US dollar 12,736 per annum. वो कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर 12,736 रुपया है. In case of India, it is estimated as 4,56,000 और more than. इससे ज़्यादा की अगर हमारी पर कैपिटा इनकम है तो हम रिच कंट्रीज़ में आते हैं. अब यहाँ पर को उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम इज़ द इनकम व्हेन अ कंट्रीज टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्रीज मिड टर्म ईयर. It gives us mandatory information about the average income received by resident of that country. Calculation of per capita income is very important in order to calculate the country's growth. Up, what is this gross domestic product? It means the earning from primary, secondary or tertiary या सर्विस सेक्टर divided by the population of that area, that is called gross domestic product, and it is calculated in mid-term year, that is called developed countries. So those countries which per capita income is more than 12,736 US dollar or 4,56,000 Indian currency, if they have,
they are developed countries. Now, the next underdeveloped or poor countries. The countries which income or whose income is less than 10,000 1,045 US dollar or between 1,046 to 4,095 US dollar. They are पुअर कंट्रीज और अनडेवलप्ड. थोड़ा सा इसको दूसरे टर्म्स में, इफ वी हैव 4,56,000 और above, we are developed countries or rich countries. The other, if we have the average income of less than 37,000, that is poor countries. Now think in between these 4,56,000 or 36,000. It means between 456,000 to 37,000. ये तो बेटा रिच कंट्रीज हो गई, ये पुअर कंट्रीज हो गई. तो अब जिसकी इनकम इसके बीच में है, that is known as developing countries. They are not developed and they are not poor. They are in the way of development. So they are developing countries. ये इनकम मेथड है. इसके बाद अदर देन इनकम, तो वी हैव इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. What is infant mortality rate? Infant mortality rate is the probability of a child born in a specific year or a period dying before reaching the age of 1. That is infant. Start with infant word. The child between 0 to 12 month, they are known as infant. So in a particular year, how many children get birth, how many dies. So these two different. So the difference between birth and death, between birth and death of 0 to 12 months, that is called infant. So if the difference increasing, means we are not developed. If the difference decreases, we are developed. Ab how can we say that we are developed or not developed? If the ratio is increased, we are not developed. Why the ratio of remaining increased? Because of medical facilities. हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इसीलिए बर्थ और डेथ के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है. अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा है तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है. इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर मरने वालों की संख्या या रिमेनिंग की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या घट रही है. बर्थ तो कैलकुलेटेड है, लेकिन मरने वालों की संख्या कम हो रही है और बचने वालों की संख्या बढ़ जा रही है 0 to 12 month, बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़. और मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे हम प्रोवाइड करा रहे? बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम. हमारी इनकम अच्छी है, इसलिए हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे लेते हैं, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी. द अदर इज नेट अटेंडेंस रेशियो. Net attendance ratio is the total number of children in age group of 6 to 10 that attend in a school as a percentage of total number of children. Suppose we have 100 students registered in our school. Compared with these two different consecutive years,
In first year 50 students were regular. In next year 70 students were regular. तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे 20 बच्चे रेगुलर बढ़े हैं, हमारे 20 बच्चे रेगुलर बढ़े हैं, यहाँ पर 20 बच्चे कम हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो 20 बच्चे बढ़े हैं उसके पीछे का लॉजिक क्यों बढ़े हैं? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। हमारी पैसे की कंडीशन अच्छी हुई, इसलिए हमने अपने बच्चों को स्कूल जाना बढ़ा दिया। तो ये जो रेशियो बढ़ा उसके पीछे हमारा डेवलपमेंट शो करता है कि वी आर इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। फिर अगली चीज़ आई लिटरेसी रेट। ठीक, हम इसको साक्षरता का अभी कहेंगे, हम इसको साक्षरता कहेंगे। तो इससे पहले कि वी हैव टू गो डिफाइन अबाउट लिटरेसी रेट, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज लिटरेसी। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। इसलिए टोटल लिटरेट पर 1000 population, that is called literacy rate। तो अगर ये लिटरेसी रेट एक सपोज एग्जांपल पिछली बार 632% था, इस बार 725 हो गया। इसका मतलब इस साल के कंपैरेटिवली इस साल हमारा लिटरेसी रेट अच्छा है। अब हम कहेंगे अच्छा है तो उसके पीछे का लॉजिक आ गया, क्यों अच्छा है? बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, हमारे पास सुविधाएं हैं, इसलिए हमने आपको स्कूल में पढ़ने भेजा, आपका साक्षरता रेशियो बढ़ गया। फिर अगली चीज़ हमारे पास आती है बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम इस बॉडी मास इंडेक्स को रफली बात करें तो हम इसको कह सकते हैं बेटा इंडिविजुअल्स ग्रोथ। ठीक, इंडिविजुअल्स ग्रोथ, ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। अब इसको कैसे वेट किया जाए? मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक, आपके पास ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर प्लस अपना वेट, 100 सेंटीमीटर प्लस अपना वेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आपकी हाइट आ जाती है। दूसरी चीज, आप अपनी हाइट से 100 माइनस कर देते हैं तो आपका वेट आ जाता है। ये एक टेंटेटिव है, एक अप्रॉक्सीमेटली है। सपोज करो कि आपकी हाइट 100, आपकी हाइट, आपका वेट 75 है, उसमें आप 100 ऐड करेंगे तो आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। या फिर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, उसमें से आप 100 माइनस करेंगे तो आपका 75 केजी वेट आएगा। यहाँ पर अब हम इसका जो एक आइडियाज़ लेते हैं, मीन्स 175 या 75 जो रेशियो आया, इसमें प्लस और माइनस 10 एक्सेप्टेबल है। प्लस और माइनस 10 का सेंस 175 में से 165 हो सकता है, 180 हो सकता है, प्लस माइनस एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंडीशन है इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि इतना वेरिएशन अगर 10-15 ऊपर नीचे आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि इससे ज़्यादा आता है, यदि आपका वेट, आपका हाइट, आपका साइज वेरिएशन इससे ज़्यादा आता है तो कहीं न कहीं हम इसको कहते हैं हमारा बॉडी मास इंडेक्स खराब चल रहा है। यदि खराब चल रहा है तो उसके पीछे के लॉजिक हम दे दें माल न्यूट्रिशंस,
कुपोषण जिसको कहेंगे। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ लो इनकम, बिकॉज ऑफ लेस इनकम वी विल अनएबल टू प्रोवाइड यू क्वालिटी फैसिलिटीज। इसलिए आइदर यू आर लेस डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी तक तो हमने केवल आपका बेटा इनकम मेथड ट्रेस किया था, अभी तक हमने आपका केवल इनकम मेथड ट्रेस किया था, आपका लिटरेसी रेट ट्रेस किया था, आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ट्रेस किया था, आपकी नेट अटेंडेंस रेशियो चेक किया था और आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स ट्रेस किया था। इसके साथ ही साथ आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को ट्रेस करना है, आपकी नॉलेज को ट्रेस करना है और आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यदि हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी composite measures of a country average achievements in 3 basic aspects of human development। तो हमने वो जो अदर देन इनकम और इनकम मेथड के बीच में कंपेयर किया था, उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सभी चीज़ों को यदि हम ट्रेस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जब हम कंपेयर करने चलते हैं किसी भी कंट्री को कि दैट कंट्री इज़ मच डेवलप्ड देन अदर या दैट पर्सन इज़ डेवलप्ड देन अदर, तो हम उसके लिए यही सारे क्राइटेरियाज यूज करते हैं कि वो डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है। यहाँ तक तो हमारे पास इसके ऑप्शंस आए, ये डेवलपमेंट था। इसके बाद इफ़ यू आर फीलिंग माई वीडियोज़ आर सुटेबल फॉर यू, प्लीज़ आई विश you are liking and subscribing my channel. Thank you for a next day.